Hello, students. Myself Neeraj Mishra, the computer teacher of your school. Wishing happy and healthy day to you. The topic about which I am going to explain today is types of computer virus, and this is the topic of chapter 2, unit 3, and for class 10. Students, as you all are acquainted with the term virus, computer virus, about which I have previously discussed in the last video, that is the malicious program that distract the normal functioning of the computer by corrupting the system, applications and program files in our computer. This was basically the definition of the virus. Students, these viruses are classified into different types as per the way of infecting to the computer. As per the way of impacting to the computer, the computer viruses are simply classified into the different types. So the first one is a memory resident virus. Memory resident virus, the virus which is permanently present in the main memory of the computer, that is RAM, random access memory, and will present in the same memory till the computer is on. जब तक कंप्यूटर काम करते रहता है तब तक यह वायरस आपके रैम में मौजूद रहता है, एंड दिस वायरस attaches itself with the application when the application or file is opened. जब फाइल को हम लोग ओपन करते हैं हार्ड डिस्क से, वो रैम में जब ओपन होता है तो उसके साथ में यह अटैच होकर के उस फाइल को इन्फेक्ट कर देता है. This viruses basically produce the interference in normal opening and closing of the files or an application. For example, Jerusalem, OneHub, Junkie and Saturn bug are the few examples of the memory resident virus. Second one is the non-memory resident virus. Non-memory resident virus is quite similar to the MRV, means memory resident virus. लगभग उसी के जैसा है, except it does not reside into the main memory. बल्कि जबकि यह मेन मेमोरी में रिसाइड नहीं करता, केवल यही अंतर है. लेकिन इफेक्ट करने का जो तरीका है, इन्फेक्ट करने का जो तरीका है, अटैकिंग मोड करने का जो तरीका है, वो लगभग समान ही है. बट इट इज प्रेजेंट इन, इट इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल इन द मेन मेमोरी, बट इट प्रेजेंट्स इन द जनरल प्रोग्राम मॉड्यूल. प्रोग्रामिंग जो बनाते हैं उस मॉड्यूल में इसकी उपस्थिति होती है. एंड व्हेन द प्रोग्राम मॉड्यूल इज एक्सिक्यूटेड, देन दिस सेलेक्ट्स टू इनफेक्ट वन और मोर फाइल्स इन आवर कंप्यूटर. जब इसको रन करते हैं तो यह हमारे कंप्यूटर में एक और एक से अधिक फाइल को सेलेक्ट करके उसको इन्फेक्ट करता है. ये नॉन मेमोरी रेसिडेंट वायरस हुआ. थर्ड वन इज प्रोग्राम वायरस. The program virus is generally present with an extension .exe, .com, .sys, .sys, .ovr, .scr and so on. प्रायः यह प्रोग्राम वायरस जो है कुछ खास एक्सटेंशन के साथ में उपस्थित रहता है, जैसे exe एक्सटेंशन, com एक्सटेंशन, sys एक्सटेंशन, OVR extension, SCR extension and so on. And the viruses can be easily injected in the computer, easily injected into the computer with these extension in the file name, because these all are easily executable file. क्योंकि ये सारे फाइल के जो एक्सटेंशन होते हैं, यह फाइल एक्सटेंशन वैसे फाइल के बारे में कहा जाता है, ये सारे फाइल्स ऑटो एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है. तो ऑटो एक्सिक्यूटेबल फाइल जो है वो इजिली रन करता है, और जब इसको हम स्टार्ट करते हैं तो यह हमारे कंप्यूटर में एंटर कर जाता है एंड destroy the normal functioning of the whole system.
और हमारे कंप्यूटर में प्रवेश करके कंप्यूटर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। और फॉर एग्जाम्पल जैसे संडे, कास्केड, etc. फोर्थ वन टाइप ऑफ वायरस इज माइक्रोवायरस। माइक्रोवायरस इज जनरली डेवलप्ड यूजिंग द माइक्रो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरली used to develop by using the macro programming language, and it consists of set of commands to be executed later in the computer. ये छोटा छोटा प्रोग्रामिंग, जैसे छोटा कोई प्रोग्राम, जैसे मान लो MS DOS ही है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी एक खास तरह का वायरस डेवलप करने का तरीका हो सकता है, क्योंकि MS DOS के द्वारा हम लोग बैच फाइल बनाते हैं और बैच फाइल में जनरली BAT एक्सटेंशन होता है। Perhaps you would have quite and well known about the term extension. एक्सटेंशन के बारे में जानकारी होगी। नहीं तो एक्सटेंशन एक्चुअली होता क्या कि कंप्यूटर में कई तरह के फाइल्स होते हैं, सभी फाइल्स एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, अलग टाइप के होते हैं, अलग उनके टाइप जो है या उनका नेचर, फीचर, कैरेक्टर जो फाइल्स का होता है वो अलग अलग होता है। किसके कारण? उसके एक्सटेंशन के कारण। एक्सटेंशन कुछ और नहीं, फाइल के नेम का सेकंड पार्ट होता है। कोई भी फाइल का, जब कंप्यूटर फाइल का दो नेम का दो पार्ट होता है और दोनों पार्ट सेपरेट रहते हैं डॉट से। ए फाइल नेम इन द कंप्यूटर इज सिंपली कंसिस्ट ऑफ द टू डिफरेंट स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स सेपरेटेड बाय डॉट. The left part from the dot is called primary name and the right part from the dot is called extension. And extension qualifies the character, qualifies the nature of the file. फाइल के नेचर को उसका सेकंड पार्ट, जिसको हम लोग एक्सटेंशन कहते हैं या सेकेंडरी नेम कहते हैं, वही क्वालिफाई करता है। तो अभी हमने आपको कहा कि जैसे बैच फाइल, हम लोग MS DOS के द्वारा बैच फाइल बनाते हैं जिसमें बैट एक्सटेंशन होता, तो ये एक्सिक्यूटेबल फाइल बनता। इसमें एक साथ कई कमांड्स आप इंक्लूड कर सकते हो और जब उस प्रोग्राम को उस फाइल को संचालित करते हैं तो वह फाइल संचालित होकर के कंप्यूटर में जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है उसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरह का वायरस जो है वो मैक्रो वायरस कहलाता है। इफ यू आर क्रिएटिंग अ वायरस यूजिंग MS DOS, then this kind of virus is called the macro virus. It generally infect to the data files. It generally infect to the data files and it spreads rapidly in computer because the user always tend to share the infected document with their friends. चूंकि डेटा फाइल की शेयरिंग ज्यादा होती है, व्यक्ति डेटा जो एक जगह से दूसरे जगह अपने दोस्तों को भेजता रहता है, तो चूंकि यह डेटा फाइल के साथ में अटैच रहता है तो यह इन्फेक्शन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैलने का चांस ज्यादा रहता है। सो बी केयरफुल व्हाइल द डेटा फाइल इज सेंट यूजिंग द अटैचमेंट इन विथ आवर ईमेल। अगर ईमेल के साथ में कोई अटैचमेंट भेजा जाता है, उसमें डेटा फाइल भेजा जाता है, तो आपको सावधान रहना है, वह फाइल को पहले चेक कर लेना है कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। और इसका एग्जाम्पल में कंसेप्ट, न्यूक्लियर आर द टू एग्जाम्पल ऑफ द मैक्रोवायरस। नेक्स्ट वन इज द ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स a kind of virus generally used and developed to steal the information from the targeted computer. This malicious program seems and claims to be as an important and helpful for the computer. First instance जब आप देखते हो ट्रोजन हॉर्स वाला जो इन्फेक्टेड जो प्रोग्राम होता है या उसका जो प्रोग्राम होता है, वो जो वायरस होता है, जब वैसे प्रोग्राम फाइल को आप देखते हो तो फर्स्ट इंस्टेंस ये देखने में बड़ा हेल्पफुल लगता है, लेकिन जब आप इसको अपने कंप्यूटर में प्रयोग करते हो तो यह बर्स्ट होकर के आपके कंप्यूटर के पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है। ओके, दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दिस क्लेम्स टू बी एज एन इंपॉर्टेंट फॉर द यूजर्स, हेल्पफुल फॉर द यूजर्स, but when it enters into the computer
then it begins to transfer the confidential information from the target computer to the source computer from where it was injected. जहां से यह ट्रिगर किया गया आपके कंप्यूटर में, उसको सोर्स कंप्यूटर कहेंगे, सोर्स साइड कहेंगे, उस साइड में आपके कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को वो भेज सकता है. नेक्स्ट वन टाइप ऑफ वायरस इज malware. It refers all those computer programs which have been developed with a malicifying intention. जो गलत इरादे से डेवलप किया गया कंप्यूटर प्रोग्राम्स होता वह मैलवेयर के श्रेणी में आता है. एंड इट सेक्रेटली इंटर्स इनटू द कंप्यूटर विदाउट द यूजर्स कंसेंट. आपके बिना जाने समझे आपके कंप्यूटर में इंटर करता है ये. और ये करता क्या है? इट जनरली स्लो डाउन द ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क्स. ये कंप्यूटर के स्पीड को या कंप्यूटर में नेटवर्क स्पीड को यह डाउन कर देता. एंड वेरी अनवाइंग एंड डिस्ट्रक्टिव ड्यूरिंग द नेट सर्फिंग. और जब हम लोग इंटरनेट चलाते हैं उस क्रम में यह काफी डिस्ट्रक्टिव और काफी अनवाइंग होती है, क्योंकि बार बार अनड्यू मैसेजेस जो है आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर जाता. तो ये वायरस जो है मेरा वह जो है आपका मैलवेयर कहलाता है. Next one is the spyware. Spyware simply talking about the malware programs developed with an intention to steal the information from the targeted computer. इसका भी प्रयोग इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए किया जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन को चुराने का तरीका इसका अलग है, डिफरेंट है. कैसे? तो it generally records the activities, generally monitors the activities in your computer, generally monitors the user's activity in your computer. आपके कंप्यूटर में आपकी एक्टिविटी की मॉनिटरिंग करता है, ये ट्रैकिंग करते रहता है तुम्हारा कि तुम कर रहे हो क्या अपने कंप्यूटर में. एंड ऑन ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ द यूजर, जनरली दैट ऑल मॉनिटरिंग विल बी रिकॉर्डेड and a log file is created by the virus. वायरस जो है पूरी मॉनिटरिंग करता है तुम्हारी एक्टिविटी को, और मॉनिटरिंग करने के क्रम में तुम्हारी एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग भी करता है, और रिकॉर्डिंग करने के उपरांत यह एक लॉग फाइल बनाता है. और जो लॉग फाइल सोर्स कंप्यूटर के साइड में भेज दिया जाता है. एक्चुअली क्या होता है उस लॉग फाइल में? जैसे मान लो सपोज यू आर गोइंग टू ओपन योर ईमेल अकाउंट, देन you will open your email account by using your ID and password. You are going to open your bank account using your ID and password. You are going to open a particular profile on the internet using your ID and password. तो ये ID और पासवर्ड जो आप यूज करते हो उन सारे चीजों की ये मॉनिटरिंग करते रहता है और लॉग फाइल बनाते रहता है. और ये जो लॉग फाइल बनता है वो लॉग फाइल बाद में जिस आईपी से, जिस इंटरनेट के जिस आईपी एड्रेस से इसको ट्रिगर किया गया है उस साइड में लॉग फाइल को भेज दिया जाता है. और इस तरह के आपके सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी चोरी हो गई. द इंपॉर्टेंट एंड द यूजफुल इंफॉर्मेशन आर सिंपली लीक्ड डाउन. हो गया तुम्हारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैव बीन लीक्ड. दिस वे the spyware is also a very dangerous virus in your site. Next one is worms. Worms are also a malicious programs that replicate itself without an association of the files or application. इसे किसी अन्य फाइल या एप्लीकेशन की सहायता की जरूरत नहीं होती. ये सेल्फ रेप्लिकेशन इसमें होता है. रेप्लिकेशन मीन्स कॉपिंग इटसेल्फ, अपनी कॉपी करना, अपनी संख्या को बढ़ाना, अपनी संख्या को बढ़ाना. इट विल सिंपली रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन द डिफरेंट एरिया ऑफ द डिस्क. एंड दिस वे इट इट्स अप द लार्ज मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क. कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के लार्ज एरिया को यह
कवर कर लेता है, हार्ड डिस्क के लार्ज एरिया को ये कवर कर लेता है। और जब लार्ज एरिया कवर हो जाता है हार्ड डिस्क का, तो ऑटोमेटिकली योर कंप्यूटर विल वर्क स्लो, सिंपली योर कंप्यूटर विल वर्क स्लो डाउन योर कंप्यूटर। साथ साथ इट इट्स अप द बैंडविड्थ ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क ड्यू टू विच द स्पीड ऑफ इंटरनेट इज ऑल्सो अफेक्टेड। यह कंप्यूटर में जो नेटवर्क की जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ मीन्स सिंपली टॉकिंग अबाउट द बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटरनेट लाइन टू योर साइट। इंटरनेट लाइन के द्वारा पर यूनिट इंफॉर्मेशन पर सेकेंड कितना ट्रांसफर हो रहा है, उसी को हम लोग बैंडविड्थ कहते हैं। सिंपली टॉकिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, तो ये स्पीड ऑफ इंटरनेट को प्रभावित करता है और इंटरनेट आपका वर्क स्लो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट वन टाइप ऑफ वायरस इज बूट वायरस। The virus is very dangerous for our computer because it directly attacks on the boot sector. Boot sector of the hard disk where the booting files exists. Boot means to start the computer. Booting means क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। And actually when the machine is booted, it means what? It means the important files from the hard disk are loaded simply into the main memory of the computer. This is called booting process. After that, the interactive surrounding is provided by the computer for the user to work on. तो ये बूटिंग कहलाता है। तो खास कर करके हार्ड डिस्क का जो बूट सेक्टर है, जहां पर महत्वपूर्ण फाइल्स कंप्यूटर के उपस्थित होते हैं, वह वैसे ही एरिया को, वैसे ही क्षेत्र को टारगेट करता है और टारगेट कर करके जो भी बूट फाइल्स होते हैं उसके साथ में अटैच कर करके बूट फाइल को इन्फेक्ट कर देता है और कंप्यूटर आपका इजीली स्टार्ट नहीं होता। जैसे बूटिंग फाइल्स में अगर बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द बूट फाइल्स, देन there are so many files must be available in the computer that are called the boot file, जैसे iu.sys, ms-dos.sys, command.com, config.sys, autoexit.bat. These all are the system files, may also be called the boot files. इसको boot files कहते हैं। and some DLL files also, कुछ DLL files भी। तो ये सभी मिल करके कंप्यूटर को will help the computer to easily starting means will help in starting the computer smoothly and efficiently. तो ऐसे वायरस जो है वह बूट वायरस कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में डिस्क किलर एंड स्टोन्ड वायरस। सो आफ्टर दैट द टाइप्स ऑफ वायरस इज कंप्लीटेड। सो विल अगेन बैक विद द न्यू topic of the chapter. Till have a nice day and thank you.